Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that we have already completed the revision of chapter number 9, that is verbs, perfect tenses. So today we would be moving ahead with chapter number 12, that is active and passive voice from your grammar book, that is Adventures with Grammar and Composition. I have already shared the video related to this chapter before, so if you have any doubt, you can go through that chapter because previous videos are quite detailed one. This is just a revision, so let's just recall the chapter, what it is, and we would be starting with the definition of active and passive voice. Normally, a sentence with a transitive verb, that is, a verb with an object, can be written in two voices. Now, what is transitive verb? Transitive verb means the verb which is followed by an object. जिस verb के पीछे object होता है, that verb is called transitive verb, right? So, normally, when you want to change the voice from active to passive, a sentence should have an object. That means आपके sentence का verb कैसा होगा? Transitive होगा. ठीक है? If you see the example, Post is looking at the whale. The whale is being looked at by Post. In the first sentence, the subject is the one performing the action. Right? मतलब पहले sentence में Post जो है, sorry. In first sentence, students, Post is carrying out the action. Right? मतलब doer of the action है, जो starting में है. और जो दूसरा sentence है, the whale is being looked at by Post. So यहाँ पे जो action कर रहा है, मतलब the doer of the action is last. Right? So जब आपका doer of the action is in the place of subject, right, then that is called active voice. And when the doer of the action is last और आपकी subject की position पर receiver of the action है, then it is called passive voice. Okay? So you need to remember that, students. In other words, when the subject is the doer of the action, the sentence is said to be in active voice. And when the subject is the receiver of the action, then sentence is said to be in the passive voice. ठीक है, ये ध्यान रखना. Students, you need to remember these things, that we use active voice when we want to talk about the doer of the action, right? जब हमें doer of the action के बारे में बात करनी है, at that time we are going to use active voice. और हम passive voice कब use करते हैं? When we want to talk about receiver of the action. That means जब receiver of the action ज़्यादा important है, तो हम passive voice use करते हैं. And passive voice is preferred in instructions and impersonal and formal contexts. Okay, now forming passive voice. How do you form a passive voice? While forming the passive voice, we change the places of subject and object. मतलब subject और object की जो जगह होती है वो interchange हो जाती है, right? In active voice, subject की जगह पर doer of the action होता है, और जब हम उसको passive voice में convert करते हैं तो हम object को आगे लाते हैं, मतलब receiver of the action subject की जगह पर आ जाता है, right? And we add appropriate form of the verb be to the sentence and use the past participle of the verb. That means passive voice में सबसे पहले subject and object, इन दोनों की place interchange होती है, right? Subject takes the place of an object and object takes the place of an subject. Then the second thing is we use the be form of the verb सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में. ठीक है, उसके बाद हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. एंड वी आल्सो यूज़ बाय फ्रेज, दैट मीन्स बाय, और उसके बाद हमारा डूअर ऑफ द एक्शन हम लिखते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी फॉर्म अ पैसिव वॉइस. यू कैन सी द सेंटेंसेस ओवर हियर. सारा ड्रॉज अ पिक्चर. सो हियर पिक्चर इज ऑब्जेक्ट जो हमने पहले ले लिया.
अ पिक्चर, ड्रॉ का हो गया इज ड्रॉन, ठीक है, बाय सैरा. सेम वे पोस्ट इज टीजिंग रे. रे इज बीइंग टीज्ड बाय पोस्ट. Now students, here you can notice the verb which is being changed, है ना. जो verb है वो किस तरह से change हो रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे. Rohit is drinking juice. Juice is being drunk by Rohit. And Ray is chasing Post. Post is being chased by Ray. Right? So यहाँ पे ये जो सारे changes है which are related to verb, we are going to study it in detail. राइट. बट आपको उसके अलावा के जो चेंजेस है पैसिव वॉइस में, जैसे कि सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, राइट. और फिर हम बाय का एडिशन करते हैं, वी प्लेस इट बिफोर द डूअर ऑफ द एक्शन, राइट. और हमारा जो वर्ब है उसमें जो चेंजेस है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है उसके चेंजेस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए? आई एंड वी यूज़ इट फॉर फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट एंड दे थर्ड पर्सन, राइट. तो आपको ये याद रखना है कि आई अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है एंड व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, राइट, आपका सेंटेंस अगर एक्टिव से पैसिव हो रहा है तो आपका सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बनने वाला है, राइट. तो जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो हम उसकी जगह पर मी यूज़ करते हैं. यू चेंज नहीं होता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर है. इफ़ यू सी दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, वी एट डिनर. हु एट डिनर? वी. सो वी इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हेन यू मेक इट इनटू पैसिव वॉइस, ये जो वी है वो हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट. द डिनर वॉज ईटन बाय अस. तो वी सब्जेक्ट के लिए होगा और अस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है. शी सॉ अ येटी. अ येटी वॉज सीन बाय हर. सी का हो गया हर. देन वी हैव ही सैंग अ सॉन्ग. अ सैंग वॉज संग बाय हिम. इट सेम रहता है, वी डोंट चेंज इट. एंड दे लर्न द लैंग्वेज. द लैंग्वेज वॉज लर्न बाय देम. सो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि हाउ द चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर योर, राइट. और ये एक्टिव टू पैसिव में मान लो अगर एक्टिव वॉइस में आई नहीं है और मी है, राइट, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर मी लिखा हुआ है, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वो जो मी है वो अभी क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. तो हम मी को आई कर देंगे. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखोगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखोगे. सो लेट्स सी दैट. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई होता है if there is I in the place of subject, then we are going to write me in the place of object, है ना. अगर I है सब्जेक्ट की जगह पर तो उसका ऑब्जेक्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? me. then if we have we, then it becomes us. if it is he, it becomes him when it is in the place of object. she becomes her and they becomes them. यू और इट जो है वो चेंज नहीं होते हैं वेदर इट इज़ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो रिमेंबर दीज पर्सनल प्रोनाउंस स्टूडेंट्स. एंड व्हेन वी चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस इज हैविंग टू ऑब्जेक्ट, if the sentence is having two objects, then we need to decide which one do you want to bring ahead in the passive voice. नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हम पहले लेते हैं. जैसे मान लो जॉन गेव हेलन अ बुक. नाउ स्टूडेंट्स, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड whom. ठीक है, आपको जो व्हाट का आंसर मिलेगा वो होगा एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जॉन गेव हेलन अ बुक. व्हाट डिड जॉन गेव? अ बुक. सो दैट इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. And whom did John give? Helen. So that is your indirect object. Okay. So when you change the sentence, it can be written in a two way. For example,
अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेना है तो हम लिख सकते हैं हेलन वॉज गिवन अ बुक बाय जॉन, राइट। अभी यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिया है, और मान लो अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है पहले, जो है हमारा बुक, तो हम लिख सकते हैं अ बुक वॉज गिवन टू हेलन बाय जॉन। ओके, सो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। सो यू कैन राइट इट इन बोथ द वे, बट द preferable one is the indirect object. Okay, we use indirect object first. So here we have another sentence also the same way. So you need to remember कि आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हो, बट हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक पर्सन है उसको हम पहले लेते हैं। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज इट हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। वी हैव ऑलरेडी डन इट, और आपको मैंने PDF भी भेज दिया है, बट स्टिल आई जस्ट डू 1 सेंटेंस फॉर यू। अब बाकी के अपने आप करना, ठीक है। द कोच विल गिव cricket bats to the player tomorrow. So here students, what is the coach going to give? Cricket bats. That is our direct object. और किसको देने वाले हैं? To the players. तो वो हो गया हमारा indirect object. So if we are using the indirect object first, तो हमारा sentence क्या बनेगा passive voice में? The players will be given cricket bats by the coach tomorrow। ठीक है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा है। नाउ ये जो वर्ब के चेंजेस हुए वो शायद आपको पता ना चल रहे हो, तो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट सी ओवर हियर। वो 2 चीज़ें हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग टेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल यू आर चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक बार ढूंढ लो, उसके प्लेसेस इंटरचेंज हो गए, उसके बाद जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका वर्ब है, ठीक है। नाउ व्हेन योर सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, पीपल रीड द न्यूज़ पेपर। ओके, सो व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, आपका जो वर्ब होगा वो बन जाएगा बी वर्ब प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इफ़ वी आर राइटिंग अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो बी का फॉर्म कौन कौन सा है? इज़, एम एंड आर, ठीक है, ये याद रखना है। व्हेन योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, which be verb you are going to use? We are going to use is, am or are, depending on the receiver of the action जो आगे आएगा, right? आपका जो receiver of the action है या फिर subject की place पर जो भी है, doer है या receiver है, वो उसके ऊपर depend करता है कि आप कौन सा वाला be verb use करोगे। If it is third person singular, we are going to use is. If it is third person plural, we are going to use are, and if it is I, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे am, ठीक है। So people read the newspapers, the newspapers are read by the people. Now when we are talking about simple past tense, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा जो वर्ब होगा वो होगा V2 फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। सो व्हेन वी चेंज इट, द सेम फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज़, बी वाला वर्ब यूज़ करना है और उसके बाद जो हमारा वर्ब है मेन, उसका पास्ट पार्टिसिपल। अभी यहाँ पे बी वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज और वर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ पास्ट टेंस, हमको वॉज या फिर वर यूज़ करना है। एंड
इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर आपको वॉज यूज़ करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर यूज़ करोगे, ठीक है। दे वॉच्ड द गेम वॉज वॉच्ड बाय देम, राइट। नाउ सिंपल फ्यूचर, इन सिंपल फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं विल, और फिर जो हमारा वर्ब होता है वो पहले वाले फॉर्म में, मतलब बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज़ बेस फॉर्म। एंड व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, हमको लिखना है विल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर बी का कोई फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम सिर्फ बी यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सो मीना विल डायरेक्ट द प्ले विल बी डायरेक्टेड बाय मीना। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी वाला फॉर्म, तो आपका जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें हम इज एम आर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। और हमारा वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा एक्टिव वॉइस में, ओके। दिस इज एक्टिव वॉइस स्टूडेंट्स, इज एम और आर प्लस वर्ब आईएनजी। नाउ व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, तब हम इज एम आर तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है। उसके साथ एक वर्ड का एडिशन होगा, वो है बीइंग, BEING, and then our main verb would be again in the past participle form, okay। और ये is am are है वो डिपेंड करता है आपके रिसीवर ऑफ द एक्शन पर। अगर वो सिंगुलर है तो is, प्लूरल है तो are, और अगर I है तो am यूज़ करेंगे, ठीक है। Now when we are talking about past continuous tense वैसा ही फॉर्मेट होता है, सिर्फ जो चेंज होता है वो हेल्पिंग वर्ब में होता है, सॉरी। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज़ वॉज और वर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, एंड देन जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। दिस इज़ एक्टिव वॉइस, ओके। आपको एक्टिव वॉइस भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सेंटेंसेस है वो दोनों फॉर्म में चेंज करने हैं। इट माइट बी चेंज इन एक्टिव एंड चेंज इन पैसिव वॉइस, ओके। सो यू नीड टू नो बोथ द फॉर्म, कि आपका वर्ब कौन से फॉर्म में होना चाहिए, जब एक्टिव वॉइस है और जब पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये है आपका एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, व्हाट इट वुड बी, वॉज और वर हम यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन। देन यू हैव टू ऐड द वर्ड बीइंग, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐड किया था, और फिर जो हमारा वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, ओके। इफ़ यू सी द सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग चेस, चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। नाउ योर स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन इज़ प्लूरल, इसीलिए हमने वर यूज़ किया है। बट व्हेन वी ब्रिंग द गेम चेस विच इज़ एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, राइट, तो उसके हिसाब से हमें वॉज यूज़ करना पड़ेगा, वर नहीं चलेगा। सो चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ओके। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम होता है, द टूरिस्ट इज टेकिंग अ फोटोग्राफ, योर इज टेकिंग, राइट, दैट इज एक्टिव वॉइस। नाउ व्हेन यू चेंज इट, फोटोग्राफ पहले आ जाएगा। अभी जैसे टूरिस्ट और फोटोग्राफ दोनों ही सिंगुलर है, इसीलिए हमने इज रहने दिया है। फिर बीइंग का एडिशन हुआ और टेक का पास्ट पार्टिसिपल टेकन। अ फोटोग्राफ इज बीइंग टेकन बाय द टूरिस्ट, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हेन इट इज एक्टिव वॉइस, वी आर गोइंग टू यूज हैज़ और हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज आवर एक्टिव वॉइस। यहाँ पर हैज़ और हैव ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हैज़ आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सब के साथ हम यूज़ करते हैं हैव। एंड व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, वी आर गोइंग टू यूज़ हैज़ और हैव, एंड along with it we are going to add been plus verb past participle, okay, remember that। so यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज होता है पैसिव वॉइस में, वो होता है been, और हैज़ और हैव डिपेंड करता है आपके रिसीवर ऑफ द एक्शन में।
पर, ठीक है, व्हेन वी आर चेंजिंग इट इनटू पैसिव वॉइस। आपका अगर रिसीवर सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो आप हैज़ यूज़ करोगे, और अगर उसके अलावा और कुछ है तो आप हैव यूज़ करोगे। और सिर्फ बीन का एडिशन है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल तो आपके पास पहले से ही होगा। Satish has cooked Thai green curry. Thai green curry has been cooked by Satish. Right? Now the next is past perfect. For past perfect tense students, we are going to use had plus verb past participle. ये है हमारा एक्टिव वॉइस, राइट। और जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब हमको सिर्फ बीन का एडिशन करना है, क्योंकि बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। हैड एंड वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड किंग हैड द ओल्ड किंग्स हैड बिल्ट द फोर्ट। द फोर्ट हैड बीन बिल्ट बाय द ओल्ड किंग्स। द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट। The coach will have selected the team tonight. By tonight. The team will have been selected by the coach tonight. Okay, students? So, students, I hope कि आपको tenses समझ में आ गए हैं। और अब ये जो passive voice है without doer, मतलब जिस सेंटेंस के अंदर डूअर नहीं होता है, या तो हमको मालूम है कि डूअर कौन है या फिर हमको बिल्कुल मालूम नहीं है कि किसने की है वो एक्शन, तब हम बिना डूअर के पैसिव वॉइस लिख सकते हैं। जैसे कि हर्शीज बैग वॉज स्टोलन यस्टरडे। अभी बैग स्टोल की है किसी ने, किसने की है वी डोंट नो, राइट। सो जब हम उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जब हमें कुछ पता नहीं है कि कौन है तो हम समवन या समबडी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट समवन स्टोल हर्शीज बैग यस्टरडे। सिमिलरली कभी किसी सेंटेंस में ऑब्वियस होता है कि ये एक्शन किसने की है, जैसे कि मोस्टली तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु। नाउ हु कैन स्पीक तमिल इन तमिलनाडु? पीपल, राइट। सो व्हेन यू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस वी कैन राइट पीपल मोस्टली स्पीक तमिल इन तमिलनाडु। ओके। एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, राइट, तो उसमें डिड का यूज़ किया होगा। जैसे कि यहाँ पे है जीटी डिड नॉट सी अ ब्लू व्हेल, दैट इज़ एक्टिव वॉइस। व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस आपको वही वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो बी वर्ब ब्लू व्हेल के हिसाब से यूज़ होगा, अ ब्लू व्हेल, तो उसमें डिड नहीं यूज़ होगा, वॉज यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। A blue whale was not seen by GT, ठीक है। नॉट यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड नहीं यूज़ करना है, हम लोग यूज़ करेंगे बी का वर्ब जो है was। इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, डिड GT सी अ ब्लू व्हेल, राइट। तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है जब हम टेंसेस पढ़ते थे स्टूडेंट्स कि हम नॉर्मली अगर सेंटेंस में डिड यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स अवर अनदर मेन वर्ब हैज़ टू बी इन द बेस फॉर्म, राइट। बट व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ डिड, राइट। सो व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ डिड हमको हमारा जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही बना देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिड की जगह पर हमने वॉज यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब, अ ब्लू व्हेल सीन बाय GT, ठीक है। सो ये आपको नोटिस करना है ये चीज़। एंड आई होप कि आपको टेंसेस समझ में आ गए किस तरह से चेंज होते हैं, एंड यू कैन कैरी आउट दिस एक्सरसाइज। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन let me know on my personal number, and please carry out the worksheet which I have already sent you. उसमें मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की भी एक्सरसाइज दे रखी है, so you can do that, okay, for your practice. Thank you.